آج کا ویڈیو ہمارا رہے گا دنیا کے پہلے انسان کا، یعنی کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ آدم علیہ السلام اور اس کے بعد کون کون سے نبی آئے، تو اس کے اوپر ہم پوری سیریز نکالی ہے۔ تو پہلی سیریز کا پہلا ایپیسوڈ ہے یہ۔ تو جیسے کہ آپ اس کتاب کو دیکھ سکتے ہیں، قصص الانبیاء یعنی کہ نبیوں کے واقعات، اس کے اوپر ہم نے پوری ویڈیو بنائی ہے۔ تو آج ہم اسٹوری جانیں گے آدم علیہ السلام کے بارے میں، اور اس کے بعد جو نبی ہے ان کے بارے میں بھی، لیکن پہلے دنیا میں آنے والا انسان آدم علیہ السلام۔ تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ سو جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور شروع کرتے ہیں آدم علیہ السلام کی پوری اسٹوری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے اسرائیل، میں اس خاک سے زمین پر ایک خلیفہ پیدا کروں گا۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کچھ تو خون کرتا پھرے؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اس کی جان قبض کرنے کے لیے تجھ کو ہی مقرر کروں گا۔ تب جبرائیل نے معذرت کی کہ یا رب، تیرے بندے مجھے دشمن جانیں گے۔ خدا نے فرمایا، تو غم مت کر، میں خالق مخلوقات ہوں، ہر ایک کی موت کا سبب کر دوں گا، اور ہر شخص اپنے اپنے مرض میں گرفتار رہے گا، تب تجھ کو دشمن نہ جانے گا۔ حکم الہی سے فرشتوں نے وہ مٹھی پر خاک درمیان طائف اور مکے کے بیچ سے لے کر آئے۔ باران رحمت برسا، تب 2 برس خاک گیلی ہوئی، اور چوتھے برس سالاب ہوئی، اور چھٹے برس میں کفور ہوئی، اور 8ویں برس میں آدم کی صورت بنی۔ ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی۔ ایک دن شیطان آدم علیہ السلام کے اندر داخل ہو کر ناف تک پہنچا، گرمی کی وجہ سے وہاں سے نکل آیا۔ سبب حسد و بغض و دشمنی زیادہ ہوئی، اور اپنے منہ کا تھوک اس کے قالب پر ڈال کر چلا گیا، اپنا تھوک اس پتلے پر پھینکا۔ حق تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے وہ تھوک نکال کر اللہ کو دیا، اور اللہ نے اس تھوک کی جو مٹی تھی اس سے کتے کو پیدا کیا، یعنی کہ کتا شیطان کے تھوک سے پیدا ہوا ہے۔ جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو تم آدم کو، تو سجدہ کیا سب نے، مگر شیطان نے سجدہ نہ کیا اور تکبر کیا، اور وہ تھا منکر میں سے۔ فرشتوں نے جب سجدے سے سر اٹھایا تو وہاں ابلیس کو کھڑا دیکھا۔ ابلیس یعنی شیطان کا ہی نام ہے۔ معلوم کیا کہ وہ ابلیس ہے جس نے سجدہ نہ کیا۔ پھر دوسری دفعہ سب فرشتے سجدے میں گر گئے۔ سجدہ اول حکم کا تھا اور ثانی شکران کا تھا۔ تب رب العالمین نے شیطان سے فرمایا، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اجاجل یعنی شیطان جو فرشتہ تھا، تو فرشتے کا نام اجاجل تھا۔ پھر اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اسے ابلیس نام دیا، اور آج ہم اسے شیطان کہتے ہیں۔ ابلیس نے کہا، قسم ہے تیری عزت کی، میں گمراہ کروں گا ان سب کو، مگر جو بندے ہیں تیرے ان میں چنے ہوئے۔ بس حق تعالیٰ نے فرمایا، ٹھیک بات ہے، اور ٹھیک ہی کہتا ہوں میں، مجھ کو بننا ہے دوزخ تجھ سے اور ان سب سے جو تیری راہ پر جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، جب میں نے تجھ کو بھی حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا، تو بحث سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں تکبر کرے، بس نکل جا کہ تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا، اچھا، تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔ بولا کہ مجھے تو نے گمراہ کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے، غرض ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ جناب باری کے حکم سے تخت آدم علیہ السلام کا فرشتوں نے جنت الفردوس میں لا رکھا، اور سب نعمتیں اللہ نے ان کو عنایت کی، یعنی کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آدم علیہ السلام کو عنایت کی۔ ان کے سر پر تاج، ان کا تخت، سب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں دیا۔ آدم علیہ السلام کا کوئی ہم جنس نہ تھا۔ آدم بے قرار ہوئے،
तब हक ताला ने उनको ख्वाब में डाला और ऐसे सोए कि न नींद आई न बेदार हुए। उस सूरत में खालिक के जिब्राइल से एक हड्डी बाएं पहलू से उनके निकलवाई। उससे आदम को दर्द न पहुंचा, अगर पहुंचता तो हरगिज मोहब्बत औरतों की दिल में मर्दों के न होती। उस हड्डी से हवा को बनाया, यानी कि औरत को आदमी की टेढ़ी पसली से पैदा किया है। खूबसूरती जहाँ की औरतों में थी, वैसे खूबसूरती उनको अल्लाह ने बख्शी और अकलमंदी, शर्म, महर, शफकत, कमाल उनको दी और पोशाके जरीन बहिश्त से लाकर उन्हें दी और ताजे जरीन उनके सर पर रखते तख्ते जरीन पर उन्हें बिठवाया। आदम अलैहिस्सलाम को नींद से बेदार करके हवा के साथ जलवा दिया। उससे हवा अलैहिस्सलाम को इस तरह देखकर वे इख्तियार चाहा कि उस पर दस्त अंदाज हो गए। तब गैब से आवाज आई, ए आदम, खबरदार, बेनिकाह उसकी मोहब्बत हराम है। तब आदम ने उससे निकाह करने की ख्वाहिश की। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हवा अलैहिस्सलाम के साथ कर दिया। रिवायत है कि अल्लाह ने जिस पेड़ के पास आदम को जाने को मना फरमाया था, जब उस पेड़ की चांदनी, डालियां और सोने की पत्तियां जबरदस्त जब्स की थी, आदम अलैहिस्सलाम ने जब पेड़ की तरफ नजर की, निहायत खूबसूरत देखा। कहा कि सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत दरख्त है। हक ताला ने इरशाद हुआ कि मैंने तुझे बख्शा, मगर इसके मेवे मत खाना। ए आदम, होशियार हो शैतान के मकरो फरेब से, जैसा अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर कह दिया हमने, ए आदम, ये दुश्मन है तेरा और तेरे जोड़े का, निकलवा ना दे तुझको जन्नत से। आदम अलैहिस्सलाम को जब यह देखा कि बहिश्त के सब दरवाजे बंद हैं, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में डाल के उनकी निकाह हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ करके जन्नत के सारे दरवाजे बंद कर दिए कि शैतान कहीं से दाखिल ना हो जाए। एक रोज शैतान ने कष्ट किया आदम के पास जाने का। जन्नत के दरवाजे पर जा पहुंचा। जन्नत के दरवाजे बंद देखकर ख्याल करता रहा कि किस हीले से जन्नत के अंदर जावे। बे इत्तेफाकन एक मोर कंगोर पर जन्नत के दरवाजे पर बैठा हुआ था। मोर ने पूछा, तो कौन है? कहा, मैं एक फरिश्ता हूँ। यानी कि शैतान ने कहा, मैं एक फरिश्ता हूँ। मोर बोला, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? शैतान ने कहा, जन्नत को देखता हूँ और आना चाहता हूँ। मोर ने कहा, मुझे खुदा का हुक्म नहीं कि किसी को जन्नत में ले जाओ जब तक कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर है। शैतान बोला, तू मुझे जन्नत के अंदर ले जाए तो ऐसी एक दुआ तुझे सिखाऊंगा कि जो उस पर दुआ पढ़े और अमल करे तो 3 चीजें उसको हासिल होगी। एक तो वो कभी भूखा न रहेगा और कभी भी न मरेगा और जन्नत में हमेशा रहेगा। तब उसने ये मर्जा साहब को सुना दिया। बात को सुनते ही खौफ से अपने सर को बाहर निकालकर उसे पूछने लगा कि तू कौन है, कहाँ से आया है, जो यहाँ बैठा हुआ इब्ने आजम पढ़ रहा है? शैतान बोला, मैं एक फरिश्ता हूँ। सांप ने कहा, वो दुआ मुझे सिखा, तू मुझे जन्नत में ले जाए तो सिखाऊं। सांप ने कहा, मुझे खुदा का हुक्म नहीं है कि किसी को जन्नत के अंदर ले जाऊं जब तक कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत के अंदर दाखिल है। इब्लिस ने कहा, मैं कदम अपना जन्नत के अंदर नहीं रखूंगा, तेरे मुंह के अंदर रहूंगा। सांप ने अपने मुंह को फैला दिया। शैतान उसके मुंह के अंदर जा घुसा। तब उसको जन्नत में ले गया और दरवाजे जन्नत के बंद कर दिए। शैतान ने कहा, तू मुझको उस पेड़ के पास ले जा जिसके खाने से अल्लाह ताला ने हजरत आदम को मना फरमाया है। जब शैतान को उस पेड़ के पास पहुंचाया तो वो मलून मकरू फरेब से सांप के मुंह के अंदर रोने लगा और उसकी आवाज से हुरे और गिलमाए सब जमा हुए और कहने लगे, हम सब ये आवाज सांप के मुंह से कभी नहीं सुनी थी। सांप से हव्वा अलैहिस्सलाम कहने लगी कि तू किस लिए रोता है? शैतान ने कहा, मैं इसलिए रोता हूँ कि अल्लाह ताला तुमको जन्नत से निकालेगा क्योंकि तुमने इस पेड़ के मेवे खाने से मना किया है, मगर जो इस दरख्त के मेवे खाएगा वो जन्नत में रहेगा, निकाला न जाएगा। मैं सच कहता हूँ, मैं तुम्हारी बदी नहीं चाहता बल्कि नसीहत करता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, और शैतान ने उनके पास कसम खाई है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर खींच लिया उनको फरेब में। पहले जिसने झूठी कसम खाई वो शैतान ही था। हव्वा ने उसके कसम खाने से यकीन किया कि यह सच कहता है। उसने फरेब खाकर उस पेड़ पर हाथ बढ़ाकर 3 दाने गंदम के लिए, गुंदम यानी कि एक जात का फल था, एक तो आपने खाया और 2 दाने आदम अलैहिस्सलाम के लिए लाए। हव्वा आदम अलैहिस्सलाम के लिए 2 दाने गंदम के लिए गए तो वो बोले, ये क्या चीज है? हव्वा ने कहा, यह फल उस पेड़ का है जिससे खाने से खुदा ने मना फरमाया था। मैंने तो 1 दाना खाया और 2 दाने तुम्हारे लिए लाए हूँ। आदम ने कहा, इससे क्या लज्जत है? 2 दाने गंदम के लेकर खा गए। वो 2 दाने नीचे हलक कर उतरे नहीं थे कि ताज उनके सर से उड़ गया और तख्त से गिर पड़े और दोनों नंगे हो गए जैसा अल्लाह ने फरमाया। फिर जब चले दरख्त से दोनों ने मेवे खुल गए ऐब और लगे जोड़ने अपने ऊपर पत्ते जन्नत के। और ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी बहिश्त में रहो सहो और जहां से चाहो और जो चाहो नोश जान करो, मगर इस दरख्त के पास न जाना
वरना गुनहगार हो जाओगे। तो शैतान दोनों को बहकाने लगा ताकि उनकी शर्मगाहें जो उनसे पोशीदा थीं उन पर खोल दे, और कहने लगा कि तुमको तुम्हारे परवरदिगार ने इस दरख्त से सिर्फ इसलिए मना किया है कि तुम फरिश्ते न बन जाओ या हमेशा जीते न रहो। और उनसे कसम खाकर कहा कि मैं तो तुम्हारा खैरख्वाह हूं। गरज मरदूद ने धोखा देकर उनको मासियत की तरफ खींच ही लिया। सो जब उन्होंने उस दरख्त के फल को खा लिया तो उनकी शर्मगाहें खुल गईं और वो बहिश्त के दरख्तों के पत्ते तोड़ तोड़ कर अपने ऊपर चिपकाने और सत्र छुपाने लगे। जन्नत के लोग आवाज देने लगे कि आदम और हवा दोनों खुदा की दरगाह में आसिफ हुए और दीवानों की तरह जन्नत में भटकते फिरते हैं। जिब्राइल ने उनके पास आए और बोले, ए आदम, तुझे तेरा रब बुलाता है, जैसा कि अल्लाह ने फरमाया। और पुकारा उनको उनके रब ने, मैंने तुझको मना किया था उस पेड़ से और कहा था तुझको कि शैतान तुम्हारा खुला और साफ दुश्मन है। तब आदम व हवा अलैहिस्सलाम दोनों रोते हुए कहने लगे, ए रब, हमने खराब किया अपनी जान को, और अगर न बख्शे तो हमको और हम पर रहमत न करे तो हम हो जावे नामुराद। फरमान रब्बुल आलमीन का जिब्राइल को हुआ कि आदम और हवा, सांप और शैतान और मोर, इन सब को जन्नत से निकालकर दुनिया में डाल दो। और उनके परवरदिगार ने उनको पुकारा कि क्या मैंने तुमको इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था और जता नहीं दिया था कि शैतान तुम्हारा खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। दोनों अर्ज करने लगे कि परवरदिगार, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, और अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम तबाह हो जाएंगे। फरमाया, तुम सब बहिश्त से उतर जाओ, अब से तुम एक दूसरे के दुश्मन हो और तुम्हारे लिए एक वक्त खास तक जमीन में ठिकाना और जिंदगी का सामान कर दिया गया है। फरमाया कि इसी में तुम्हारा जीना होगा और इसी में मरना, और इसी में से क़यामत को जिंदा करके निकाले जाओगे। आदम और हवा अलैहिस्सलाम इस बात को सुनते ही घबरा गए और जुदाई जन्नत की रोने लगे। आखिर एक टुकड़ा लकड़ी का मिसवाक के वास्ते वहां से ले आए। वो लकड़ी पुश्त व पुश्त उनके खानदान में चली आई, यहाँ तक कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ का असा बना। आदम को सर अदीब जजीरे में डाला, और हवा को खुरासान में, और ताऊस को सिस्तान में, और सांप को इस्ताहान में, और शैतान को दमाज में डाला। उस वक्त सांप के 4 हाथ और 4 पांव थे। इस माजरे के लिए अल्लाह ताला ने उससे ले लिए ताकि वो पेट के बल चले। आदम अलैहिस्सलाम को जब सर अदीब में डाला तो वो अपने गुनाह से 40 बरस तक रोते और भटकते रहे, और दूसरी रिवायत में है कि 300 बरस रोते रहे और भटकते रहे। तो एक रोज जिब्राइल हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, ए आदम, हज कर ले। खबर सुनते ही डरे और खड़े हुए इरादा किया हज का। मक्के मुअज्जमा तक आदम अलैहिस्सलाम में 30 कदम हुए थे जब वो मक्के के नजदीक पहुंचे। तब फरिश्ते हजरत के पास आए और कहा, आदम, 2000 बरस हुए कि हम इस घर का तवाफ करते हैं, और उस वक्त काबे का नाम बैतुल मामूर था, और अंदर बाहर उसके जाहिर था, और उसके ऊपर खैमा जबरजद का था। तनाबे उसके सोने की थी, और जो खेमे उसकी थी वो 8 सुतून है और हरम शरीफ में दाखिल है। आदम अलैहिस्सलाम मैदान अरफात में जबल रहमत पर आराम के वास्ते जब ठहरे, हव्वा को देखा कि जिदेद की तरफ से आती है। उन्होंने उनको गले लगा लिया और दोनों जारो जार रोने लगे। उनके रोने से आसमान के फरिश्ते भी रोए। बस दोनों ने आसमान की तरफ निगाह की और खुदा ताला ने हिजाब को उनकी आंखों से उठा लिया। उनकी तरफ देखा जैसा अल्लाह ताला ने फरमाया। फिर सीख ली आदम ने अपने रब से कई बातें। फिर मुतवज्जह हुआ उस पर, और बरहक वही है माफ करने वाला मेहरबान। आदम ने अर्ज पर यह कलमा लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसने कहा, या रब, बरकत है इस नाम की जो तेरे नाम के साथ है, गुनाह हमारे बख्श दे, तौबा हमारी कबूल कर। फिर उनके पास जिब्राइल आए और कहा, हक ताला ने तुम पर सलाम भेजा है और फरमाया है कि अगर तू जन्नत में उस नाम को सफी लाता तो हरगिज मैं तुझको दुनिया में न डालता। यानी कि अल्लाह की नाफरमानी ना की होती आदम अलैहिस्सलाम ने तो आदम अलैहिस्सलाम कभी भी दुनिया में न आते। आदम अलैहिस्सलाम जब हज से फरागत की हुक्म आया, ए जिब्राइल, आदम को वादिय नोमान में ले जा, जो एक मैदान का नाम है, ले जाकर अपने पैरों को उसकी पुस्त पर मल दे। जब मला गया तब जुर्रियात बेशुमार उनकी पुस्त से निकली, ऐसा कि तमाम आलम की औलादे भर गया। बस आदम अलैहिस्सलाम बोले, ये सब कौन है? जिब्राइल ने फरमाया, ये सब तुम्हारे फर्जंद है। यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब आदम अलैहिस्सलाम को नोमान यानी एक मैदान का नाम था उधर लेके गए तो आदम अलैहिस्सलाम की जितने भी नस्लें आने की थी सबको अल्लाह ताला ने उनके सामने रख दिया। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि जुर्रियात खड़ी हो। सब मानकर उसी वक्त वो खड़ी हो गई। जो आदम अलैहिस्सलाम की सीधी तरफ खड़े थे सब के सब मोमिन थे। उनमें आगे सफ़े अव्वल में उनके अंबिया और पीछे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे। पीछे इसलिए खड़े थे क्योंकि
अपने नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है दुनिया के। और जो लोग बाएं तरफ खड़े थे वो सब काफिर और मुतकब्बिर थे। अम्र इलाही हुआ, हूँ मैं रब तुम्हारा, बोले सब सच है परवरदिगार। अल्लाह ताला ने कहा सजदा करो तुम अपने रब को। जो लोग सीधी तरफ आदम के खड़े थे वो सब के सब सजदे में गिर गए, और जो लोग दाईं तरफ खड़े थे उन्होंने सजदा न किया। फिर इरशाद फरमाया सजदा करो तुम अपने रब को। जो लोग बाएं तरफ खड़े थे उनमें से भी बाजों ने किया और बाजों ने न किया। यह हकीकत देखकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जनाब बारी से अर्ज की, तो मुझे आगाह करके इसमें क्या राज है। ए आदम, जिस कौम ने अव्वल आखिर में सजदा किया वो मोमिन पैदा होंगे और मोमिन मरेंगे। यानी अल्लाह ताला ने कहा सजदा करो, तो जो पहले सजदा किया वो मोमिन पैदा होंगे और आखिर में सजदा किया वो मोमिन ही मरेंगे। और जिन्होंने अव्वल व आखिर में सजदा न किया वो काफिर पैदा होंगे और काफिर मरेंगे। और जो दूसरे लोग थे उन्होंने पहले भी सजदा नहीं किया और आखिर में भी सजदा नहीं किया, तो वो काफिर पैदा होंगे और काफिर ही मरेंगे। और जिन्होंने अव्वल सजदा किया और बाद में न किया वो मोमिन पैदा होंगे और काफिर मरेंगे। यानी कि जब अल्लाह ताला ने हुक्म किया सजदे का, तो जिन्होंने पहले सजदा किया तो वो मोमिन पैदा होंगे और बाद में सजदा न किया तो वो काफिर मरेंगे। और जिन्होंने बाद में सजदा किया और अव्वल ना किया तो वो काफिर पैदा होंगे और मोमिन मरेंगे। यानी कि जिन्होंने आखिर में सजदा किया और पहले सजदा ना किया तो वो होंगे तो काफिर पैदा, लेकिन उनको जब मौत आएगी तो वो मोमिन मरेंगे। तो आदम अलैहिस्सलाम किस तरह से दुनिया में आए और किस तरह से हव्वा अलैहिस्सलाम के साथ मिले, और इसके बाद का किस्सा है कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के लिए आग लेके आते हैं जन्नत से, और हाबिल और काबिल का भी किस्सा इसके बाद है। तो प्लीज सब्सक्राइब। ऐ बनी आदम, हमने तुम पर पोशाक उतारी कि तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाए और तुम्हारे बदन को जीनत दे, और जो परहेजगारी का लिबास है वो सबसे अच्छा है। ये अल्लाह की निशानियां हैं ताकि लोग नसीहत हासिल करें। ऐ बनी आदम, देखना कहीं शैतान तुम्हें बहका न दे, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप को बहका कर बहिश्त से निकलवा दिया और उनसे उनके कपड़े उतरवा दिए ताकि उनके सत्र उनको खोल कर दिखा दे। वो और उसके भाई बंद तुमको ऐसी जगह से देखते रहती हैं जहाँ से तुम उनको नहीं देख सकते। हमने शैतानों को उन्हीं लोगों का रफीक बनाया है जो ईमान नहीं रखते। और ये लोग जब कोई बेहयाई का काम करते हैं तो कहते हैं कि हमने अपने बुजुर्गों को इसी तरह करते देखा है, और अल्लाह ने भी हमको यही हुक्म दिया है। कह दो कि अल्लाह बेहयाई के काम करने का तो हुक्म नहीं देता। क्या तुम अल्लाह की निस्बत ऐसी बात कहते हो जिसका तुम्हें इल्म नहीं? कह दो कि मेरे परवरदिगार ने तो इंसाफ करने का हुक्म दिया है, और ये कि हर नमाज के वक्त सीधा किबले की तरफ रुख किया करो और सिर्फ उसी की इबादत करो और उसी को पुकारो। उसने जिस तरह तुमको इब्तिदा में पैदा किया था उसी तरह तुम फिर पैदा होगे। एक फरीक को तो उसने हिदायत दी और एक फरीक पर गुमराही साबित हो चुकी। इन लोगों ने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को रफीक बना लिया और समझते ये हैं कि हिदायत याब हैं।